ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾಯಕರು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರ್ದಾರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಅಭಿನಂದನ್ ಅಭಿನಂದನ್, ನಡ್ಡಾಜಿಗೂ ಅಭಿನಂದನ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಅಭಿನಂದನ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಅಭಿನಂದನ್, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಭಿನಂದನ್ ಅಭಿನಂದನ್, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ understand that there is no leader in the Congress party, there is no leader in any regional party which can come forward and talk like this, that this is what we are going to do for the change of people. This is BJP we have to do. कोई नेता नहीं होगा वो इधर उधर की बात करेगा, वो जातिवाद की बात करेगा, वो इलाकावाद की बात करेगा, वो भाषावाद की बात करेगा, वो लोगों को बांटने की बात करेगा, लेकिन गरीब के आंसू को पोंछने के लिए उसके पास 2 शब्द भी नहीं होंगे. ये मेरा चार्ज है अन्य राजनीतिक दलों के बारे में. ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है जो विकास को आगे नहीं जाता है. और देखिए हमको भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है. अभी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव सारे लगे हुए थे टपली बजाने, जाएगी जाएगी बीजेपी जाएगी. और आप लोग भी मुझे फोन किया करते थे, नड्डा जी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग. हम सबको बोलते थे दिल थाम के बैठो, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा और योगी जी को काम करने का मौका देगी उत्तर प्रदेश की जनता. और वो आपको मिला. कैसा अफवाह बना दिया था. बड़ी फाइट है, बड़ी फाइट है, बड़ी फाइट है. कहां गई फाइट? After 38 years, a chief minister of the same party is coming as chief minister. This has happened in Uttar Pradesh after 38 years. And since independence, it is the first state where the chief minister is able to complete his 5 years, and now he has again taken oath as the chief minister. This has happened in independent India for the first time. We have to understand. And do you want to know the result of Congress? Which they are going to be fighting here against you? In Uttar Pradesh, Congress fought on 399 seats. And in 399, they lost deposit in 387 seats. This is the result which they have got. मैं चाहूंगा आप अपने कांग्रेस साथियों को बुलाइए. Come here. Do you know this? That out of 399, 387 deposit, जमानत जब्त, छुट्टी, पूछो उनसे. You should ask them. If I talk about our party, they fought on 377 seats and they lost their deposit in 377 seats. 0%. If I talk about Uttarakhand, जब से प्रदेश बना तब से किसी की भी सरकार दोबारा नहीं आई, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 47 सीट, 70 में से 47 सीट्स लेकर के
जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनी और आप पार्टी वहां भी 70 सीट्स पर चुनाव लड़ी और 68 में जमानत जब्त। 68 ये है इनका रिजल्ट। इफ आई टॉक अबाउट गोवा, I would like to congratulate my friend C.T. Ravi. He was the Prabhari. उसने काम किया दिन रात। I would like to congratulate my friend. He worked day in and day out, and you will be happy to note that 20 plus tally majority of BJP on its own. For the first time we had it, and it was the 3-time hat-trick बनाया है, तो गोवा में बनाया, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और मणिपुर तो आप देखिए, यानी और मणिपुर की अगर हम बात करें तो आप क्या, मैं क्षमा करूंगा, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं और मैं अपने प्रहलाद जोशी जी को बधाई न दूं। प्रहलाद जोशी जी को विशेष बधाई इसलिए देता हूं, कर्नाटक का रहने वाला जनवरी महीने में उत्तराखंड के चुनाव में लड़ने के लिए ठंड के बीच में बेचारे ने, उनको जो ठंडी लगी उसके बीच में भी इन्होंने काम किया। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड उत्तराखंड में। और हमको बोलते थे नड्डा जी कहाँ पहाड़ चढ़ना, कहाँ उतरना, कहाँ चढ़ना, कहाँ उतरना। मैंने कहा देखो, विविधता में एकता भारत की विशेषता। तो आप कर्नाटक से चलकर आपने उत्तराखंड में कमल को खिलाया है, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ और क्या आपने बहुत मेहनत की वहाँ। मणिपुर की बात करूँ, मणिपुर वॉज नोन फॉर blockades, curfew and insurgency, and 5 years एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से the definition of Manipur changed. मणिपुर फ्रॉम बंद, ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी एंड कर्फ्यू से निकल करके पीस, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड इंसर्जेंसी फ्री स्टेट बन गया और मणिपुर में फॉर द फर्स्ट टाइम विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विशुद्ध, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, वी आर ऑल वेरी वेरी लकी एंड वी आर ऑल वेरी भाग्यशाली। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं that we are working in Bharatiya Janata Party, and that too at a time when we have a towering leader like Narendra Modi, who is not only a national leader but an international figure, and he comes from Bharatiya Janata Party. It is our it is auspicious to us, and when I say so, I would like to share with you that it is only Bharatiya Janata Party which is national party. Rest are, none of them are national parties. सब भाई बहनों से लेकर के परिवार की पार्टी है। कोई पार्टी आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी नहीं है। आप बोलोगे कि नड्डा जी आप क्या बोलते हैं, मैं आपके सामने भारत का नक्शा रखता हूं। आप बताइए जम्मू कश्मीर में पीडीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप आइए पंजाब में शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आने वाले समय में आप पार्टी भी परिवार की पार्टी बनेगी कि नहीं? आप चलिए हरियाणा आइए, आप बताइए ये लोक दल अजय चौटाला, अभय चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप चलिए उत्तर प्रदेश आ जाइए, इतना बड़ा प्रदेश है, कांग्रेस 0, मैंने आपको बता दिया 399 में, 387 में सुपला साफ, जमानत जब्त। लड़ाई किससे हुई? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप आगे बढ़िए, बिहार में आरजेडी, तेजस्वी, लालू परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बंगाल में आइए, टीएमसी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप असम में जाइए, बद्रीदून को लीजिए या गोइगोई को लीजिए, परिवार की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? आप उड़ीसा में आइए, बीजू जनता दल एक व्यक्ति की पार्टी है कि नहीं है? आप उससे नीचे जाइए, टीडीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप उसके साथ देखिए वाईएसआर परिवार की पार्टी है कि नहीं? जगनमोहन की परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप उसके साइड में जाइए, तेलंगाना, बताइए केसीआर टीआरएस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप कर्नाटक आइए, बताइए जेडीएस परिवार की पार्टी है कि नहीं है?
आप शिवसेना को देखिए, महाराष्ट्र में परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप महाराष्ट्र में एनसीपी को देखिए, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, न ये इंडियन है, मेरी शब्दों को नोट करिएगा, न ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, 2 प्रदेशों में सीमित हो गई है, लेस देन अ रीजनल पार्टी। और कांग्रेस नाम की तो चीज ही नहीं रह गई है। जो बोले विरोध में वो हो जाए एंटी पार्टी। ये भाई बहनों की पार्टी रह गई, बाकी छुट्टी, सबकी छुट्टी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है और विचारों के आधार पर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, that we are very lucky to be the instrument of change. We are very lucky that we have a battery of leaders. एक श्रृंखला है हमारे पास नेताओं की, हमारे पास कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है। हम ही परिवर्तन के माध्यम बनेंगे, हमें ही अपने आप को आगे बढ़ाना। और इसलिए आप सब लोग इस संकल्प के साथ यहाँ से जाइए कि हमें कर्नाटक में फिर से कमल खिलाना है और कर्नाटक को आगे बढ़ाना है और कर्नाटक को आगे ले जाते हुए सारे साउथ में परिवर्तन का माध्यम कर्नाटक को बनना है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात